ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚੌਧਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਨ ਇਕੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੱਦਾਵਰ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੂਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੂ ਟਕੈਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੁਨੀਤਾ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੀਤਾ ਟਕੈਤ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸੋਨੂ ਟਕੈਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜੋ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਡਰ ਜੋ ਟੀ ਆਰਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ ਬਚਾਨ ਖਾਪ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਸਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਜ਼ੋਰੀ ਦੇਵੀ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਰੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ है जी मंजू टकैत जी आपका डेली पोस्ट चैनल पंजाबी पे। सो सब आप सरल शब्दों में पूछूंगा, जो 26 की घटना हुई थी उससे कहीं मन विचलित तो नहीं हुआ था कि पीछे बुला लें या वहाँ पे कुछ हो जाए? जैसे वो बात कर रहे थे टकैत जी की 100 लोग नीचे आ गए हैं, हमला कर सकते हैं। नहीं। इधर नरेश टकैत जी ने मोर्चा संभाला, क्या बताएंगे उस रात का थोड़ा मंजर बताइए। नहीं, कोई नहीं ऐसा बकाए में आया था, ना कुछ भी समझ आ रहा था ऐसा कुछ भी कि भाई धोखा हो जाएगा। ऐसा जरूर था कि धोखा होने को जा रहा है। हाँ, कोशिश हो रही है धोखे की, ये जरूर मन में आ रहा था। धोखे की वजह से इतना गाँव गुहान इतना जागरूक हुआ रात में कि ये धोखा हो रहा है हमारे साथ। किसानों के साथ हो रहा है, टिकैत साहब के साथ नहीं, किसानों के साथ हो रहा है। टिकैत साहब तो चले जाएंगे और किसानों के साथ हो रहा है धोखा, वो हमें सहन नहीं हो रहा था। उस दिन जान भी कैसे कह सकते हैं जोखिम में थी, पर मैदान नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं वो उस चीज का नाम नहीं ले सकती कि राकेश जी के लिए भी वे क्या करते और उन किसानों के लिए तो मैं करते, जो भी करते उन्हें तो मैं छोड़ ही नहीं थे। राकेश जी के लिए भी जो करते हो मैं नहीं बोल सकती उस चीज को। सो हुण बिल्कुल धन्यवाद जी। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਉਸ वक्त ਤੁਸੀਂ बॉर्डर पे मिलन जाते हो, ਹੁੰਦਾ ਕੀ है अक्सर कि आम, मैं थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, आम लोग क्या होते हैं जो
परिवार के लोग होते हैं, बाहर नौकरी करने जाते हैं, वो घर आते हैं महीने 2 महीने बाद। पर अब ऐसे हालात बन गया कि आप लोगों को बॉर्डर पे जाना पड़ता है, तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, गर्व होता है। गर्व होता है। हाँ, बहुत मन लगता है, बहुत गर्व है। अच्छा, जब मैंने पहली बार जो टिकैत परिवार पे स्टोरी की थी तो मैं बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे ट्राली में किसान बैठे थे हरी टोपी पहन के, जो उनकी परंपरागत पहचान है। तो उन लोगों ने मेरे को बोला, मैंने कहा भाई मेरे को टिकैत शब्द का अर्थ बताओ। तो कह रहे कि इनको उपाधि मिली थी जो मैदान नहीं छोड़ता, टिक के आंदोलन करता है। तो वो सिद्ध कर दिया आपके जो परिवारों के मुखिया, बेशक नरेश जी हो, राकेश जी हो, सुरेंद्र जी हो, नरेंद्र जी हो, तो लग रहा है कि वो सिद्ध होगी बात। सिद्ध होगी, टिके तो टिके ही रहे। टिके रहे? हाँ, नहीं छोड़ा मैदान? नहीं छोड़ा, अन्ना छोड़े। तो फिर बिल का कैसे बिल वापसी होंगे, होंगे वापस? होंगे। MSP पर कानून बनेगा, बिल वापसी होंगे। तो इसमें अगर 2024 तक समय लग गया तो परेशानी तो नहीं आपको घर में? नहीं लगा तो नहीं, 2024 तक परेशानी क्या होती भाई, सारा काम करना आवे, छोलना भी, काटना भी, गेहूं काटने भी, सारे काम आवे। और सरकार सोचती हो कि किसी दबाव में किसान आके और फैसला कर लेंगे, किसान किसी दबाव में नहीं आने के, नहीं आने के। तो कल एक खेती बाड़ी मंत्री जो नरेंद्र तोमर है, उन्होंने बयान दिया, पहले बोल रहे थे कि बहुत कम लोगों का आंदोलन है, जो सरकार बात कर रही थी। कल एक और बयान दे दिया उन्होंने कि जो भीड़ इतनी इकट्ठी कर लो, जितनी भी इकट्ठी कर लो, भीड़ इकट्ठी करने से बिल नहीं रद्द होंगे। क्या कहना चाहोगे उस बारे में आप? तो वो तो मोदी जी वो बता दे तोमर साहब कि क्या करें, भीड़ इकट्ठी करें या भीड़ को भगा दे, मनता है जैसे में चाहते हो ऐसा कर लेंगे, जैसा दृश्य चाहेंगे वैसा दिखा देंगे, ऐसा ही दिखा देंगे। और दिखा भी लिया होगा 1-2 बार ऐसा। 12 दौर की चलो बात करते करते मैं आता हूँ आपके पास। 12 दौर की बात हो गई, वो कह रहे इसमें कुछ गलती नहीं बता पाए। तो क्या चाय पानी पीने जाते थे जब किसान बोले थे बार बार कि हमें लाइव कर दो, जो हम बता रहे हैं वो भी लोग देख लेंगे, जो आप बोल रहे हैं वो भी देख लेंगे, तो लाइव तो किया नहीं। अब ये कितनी जायज लगती है आपको बात कि उन्होंने कभी कुछ इसमें कमी बताई नहीं? वे क्यों कमी बताएंगे जब उन्होंने पूरी कर रखी है अपनी कमी। तो अपनी गलती करके कोई ये थोड़ा ही बताएगा कि हमने गलती करी है, ये तो किसान भाई बताएंगे कि गलती है कि नहीं है। तो इसमें किसानों की तो कोई गलती नहीं, गलती उन्होंने खुद कर रखी, तो खुद पछतावा करें इस चीज का, गलती का, कि हमने हमारे से गलती हुई, हमने किसानों को पहले इस चीज से आगाह नहीं किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। सारा कह रहे बिल चेंज करा लो पर उसको रद्द ना करो, ये थोड़ा कैसा लग रहा है आपको? नहीं जी, वो तो उन्हें देखो वापस तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, किसान मतलब 3 महीने हो गए कैसे बैठे, वो तो अगर अब उठेंगे तो कैसे उठेंगे, नहीं उठेंगे ना। उनकी जिद है कि किसान मतलब अपना बिल वापस करेंगे। बिल्कुल ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ ਸੋਨੂ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੌਸਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ कि बिल रद्द करवा के आवांगे। सो इन्हां नाल भी गलबात करते हैं। सो लाल किले पे भी घटना हुई और उसके बाद कभी किसानों को देशद्रोही, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ कर देना। आप लोगों के मन में, क्योंकि किसान परिवारों से, कैसे उस वक्त क्या बीतता था आप पे और क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं बीतता था। ये तो जुमलाजीवी सरकार है, तो नए नए जुमले देती है, कभी बोलती है आतंकवादी, खालिस्तानी। अब इनके सारे जुमले फेल हो गए। अब तो इन्होंने किसान भी मान लिया है कि किसान है। और जो ये 26 तारीख में जो कुछ भी लाल किले पे हुआ, ये तो जो है सरकार जो है किसानों को एक तरीके से चिढ़ाने का काम कर रही थी। रोकने की कोशिश तो किसी ने भी करी नहीं। रोकने की कोशिश करते, अगर देश के किसानों को ही रोक नहीं पा रहे तो आतंकवादियों को क्या एक खाक रोक पाएंगे? और जिसमें कि तुम्हारे देश का जो है सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, तुम्हारी जो ये 15 कंपनियां तुमने जो है बाद में लगाई 26 तारीख के बाद में बॉर्डर्स पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे, ये सारी कंपनियां पहले कहाँ थी? पहले क्या ये ऑक्शन में रखने के लिए रखी हुई थी इन्होंने, कि जो ये कंपनियां बाद में लेके आए हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार को जो भी जुमले देने हैं कि पाकिस्तानी, खालिस्तानी, वे तो सब फेल हो गए। अब हमारे नरेंद्र तोमर जी बोल रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से जो है ये बिल वापस नहीं होंगे।
तो मैं तो तोमर जी से ये ही पूछना चाहती हूँ कि इसी भीड़ से जो है कृषि मंत्री बने थे या फिर कॉरपोरेटर्स के पैसों से कृषि मंत्री बने थे, ये जो है आप कंफर्म कर दो। अगर पैसे से मंत्री बने थे तो हम भी जो है देखेंगे फिर क्या करना है। जो ये भीड़ जो है मतलब उनकी नजरों में भीड़ से बिल वापस नहीं होते, तो वो वाली ट्रिक जो है किसानों को समझा दो कि जिससे बिल वापस हो सकते हैं। अच्छा, एक लोगों में गुस्सा था कि जो टिकैत परिवार है उसका इतिहास कम बताया, कुछ चैनल ने करोड़पति बन गए रातों रात वो बता दिया। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल अमीरों वाली फीलिंग आ रही है, और तो कुछ भी नहीं। भला उन मीडिया वालों का जो हमें एहसास करा दिया हम इतने अमीर भी हैं। नहीं, आप सच में अमीर हो, नहीं इतने जितने वो बता रहे हैं। टिकैत साहब तो बोल रहे थे कि कम बताया, भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ। मैं सही तो बता रही हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी सी फीलिंग करा दी। अब तो भाई अमीर है, हम भी ठाट बाट से जिएंगे, लोगों के सामने रोब से आएंगे। जैसे जो है अडानी अंबानी के लिए मोदी कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ कर देंगे। फिर अमीरों के लिए ही तो कर रहे हैं वो, तो हमारे लिए भी कर देंगे कुछ। अपनी इस अमीरी का भी फायदा उठाएंगे फिर हम। तो अभी आप जब लोग जाते हो 2 महीने बाद अमूमन मिलने के लिए, तो क्या बोलते हैं टिकैत साहब? घर पे पूछते हैं काम धंधा कैसे चल रहा है? या अभी फसल, उन्होंने एक गुस्से में बोल भी दिया था कि खड़ी गेहूं को आग लगा देंगे, तो फिर आपने कुछ बात की? देखिए, ये जो उन्होंने बोला था कि आग लगा देंगे, ये उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम कल ही आग लगा देंगे। अगर नौबत आई तो फूड स्ट्राइक भी कर सकते हैं किसान। वो किसानों की ताकत है। वो आपने देखा होगा छोटू राम जी ने भी किया था एक बार ये चीज। उन्होंने भी बोला था कि अगर जो है हम अपनी पे आए तो हम अपने लायक बचा के आग लगा देंगे। तो थोड़ा पता चल जाएगा कि कीमत और किसान हाँ जी। तो जो ये जमाखोरी का काम जो है व्यापारियों को सौंप रहे हैं ना, फिर ये किसान करके दिखा देंगे उन्हें पता चल जाएगा कि जो ये बिल में जो जमाखोरी का जो इन्होंने ये कर दिया ना कि जितना भी भंडारण करना है, असीमित भंडारण का जो इन्होंने काम किया है, वो किसान इन्हें करके दिखा देंगे। जो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं ना, जो किसानों को आतंकवादी और ये खालिस्तानी बोल रहे हैं, अगर किसान यहाँ फूड स्ट्राइक तक स्टेप किसान ने ले लिया तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि जो वो लोग है ना, फिर उन्हें मोदी जो है फिर फ्री में बांटने वाले नहीं है। जो सरकार जो है ना, पहले ही जो है सरकारी भंडारण को कोरोना का बहाना लेके जो घरों में बंद करके, और सरकारी भंडारण में जितना भी अनाज था वो तो सब इन्होंने गरीबों को बांट दिया। साथ के साथ दूसरी तरफ इन्होंने अडानी के और अंबानी के जो है बड़े बड़े भंडारण केंद्र तैयार करा दिए। ये सब प्री प्लान था कि सरकारी भंडारण को तो खत्म कर दो, फिर ये बिल आ जाएंगे, फिर जो है इनके दोस्त भंडारण करेंगे, फिर वो अपनी मुंह मांगी कीमत में जो है लोगों को बेचेंगे। किसानों को ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है जो आप बोल रहे हैं। तो सरकार को बिल रद्द करने में क्या परेशानी आ रही है? ये किसानों को लग नहीं रहा है, ये तो सच्चाई है। ये तो जो भक्त होते हैं ना, वो नहीं समझ पा रहे इस सच्चाई को। उस सच्चाई को वो नहीं समझ पा रहे। और बात, चलिए, आप प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो आप तो उस परिवार में से हैं जो हर वक्त जो किसान आंदोलन है उसके लाइमलाइट में है। तो आप मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं, अकेले अकेले करके सबके मन की बात? पहले सोनू टिकैत जी। असल में क्या है, मोदी जी मन की बात नहीं करते। वो अपने देश में जो प्रधानमंत्री पद पे बैठ गए ना, तो जो जनता है जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, वो मन की बात नहीं करते। अब वो उनकी मजाक ले रहे हैं। मन की बात कहना तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो उनकी मजाक लेते हैं। उनकी आत्मा अंदर से तो हंसती है मोदी जी की। कहते हैं मन की बात, वो ये देख रहे हैं कि तुमने कहाँ तक इनकी नस को दुखा दिया है। वो तो सिर्फ ये जानते हैं मन की बात में। मन की बात कुछ नहीं होती उनके। किसानों के मन की बात नहीं समझते। नहीं, वो मन की बात नहीं समझते। किसानों के क्या, वो किसी भी नागरिक के मन की बात नहीं समझे। अभी नरेश टिकैत जी ਦੇ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਟਿਕੈਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ समस्या आंदी है, बेशक खाप पंचायत इकट्ठी करनी हो, बेशक कुछ और करना हो, तो सारा जिम्मा उनके कंधे पे आ जाता है और 2 भाइयों पे आ जाता है, नरेंद्र जी सुरेंद्र जी पे। सो क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री जी को? लोग कह रहे हैं कि उनकी माता जी से अपील की थी बहुत लोगों ने कि उनको बताइए समझाइए, तो आप क्या कहना चाहोगे? इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी प्रधानमंत्री ने कर दी। इतनी नहीं उम्मीद थी, समझ रहे थे कि कुछ समझेंगे, पर इतनी उम्मीद नहीं थी। कुछ सोच रखा था, कह रहे थे पहले कि किसान विरोधी हो है सरकार, अमीरों की सरकार है। इन्होंने तो करके ही दिखा दिया प्रधानमंत्री जी ने हमारे। हम नहीं सोचते, हमारे से बहुत बड़े बुजुर्ग, हम इतनी ज्यादा बोल भी नहीं सकते उनके सामने। भाई ये तो देश के। मोदी जी को कुछ बोलो, शायद आपकी मान जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं नुकसान नहीं है। नहीं, वे किसी की नहीं मानने वाले।
उनकी समझ में आई कहाँ रहा है, मेरी कहाँ जगह समझ में, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं, मेरी कहीं समझ में आ रही क्या उनकी। शक्ति को वो नवरात्रे रखते हैं, देवियों की बहुत पूजा अजी ये तो ढोंग है, गुड़गुड़ी बजा रहे, मैं तो ढोंग कर रहे, कहाँ व्रत कर रहे मैं, व्रत तो ये किसान कर रहे, जहाँ पड़े 40-40 दिन कर दे, में चिल्ला खींच दे, वे किसान कर रहे, प्रधानमंत्री कर रहे व्रत, वे मना रहे माताओं को। तो फिर डटे रहोगे? डटे रहेंगे भैया, और क्या करेंगे। तो सुनीता जी ਟਕੈਤ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ जी ਦੇ ਧਰਮ पत्नी ने। सो आप भी उधर पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, तो मन की बात शायद उधर कर नहीं पाए, रश बहुत था उस दिन, तो शोर शराबा था। कुछ कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को बिलों को? मन की बात मोदी जी मान कहाँ रहे किसी की भी, मोदी नहीं मान रहे किसी की मन की बात, वे अपनी नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं, जुमली सरकार है। तो इतने मामले दर्ज कर दिए, बहुत कुछ सुनने में आ रहा कि ये फलां पर्चा कर दिया, वो कर दिया, तो मन तो नहीं डोलता कभी ऐसे? नहीं भैया, हमारा मन नहीं डोलता, हमें तो बहुत दिन हो लिए आंदोलन में, हमारा मन नहीं डोलता बिल्कुल। ऐसा भी ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो हमारे अलंकार गहने बोलते हैं उधर। ये तो हमारा गहना है, मोदी जी को बता तो जाया करना कोई, तो उनका गहना है, हम नहीं डरते किसी तरह। आपके तो 36 गुण मिलते हैं, मैंने देख लिया। उधर टकैत जी भी ऐसे बोलते हैं, नरेश जी भी, आप भी वैसे ही है। तो लास्ट में सुनीता जी, आप मैसेज क्या देना चाहते हो सरकार को, और जो हालात है घर के और पीछे से क्या कैसे महसूस होता है जब सभी परिवार के मुखी तो आंदोलन में है? देखो जी, घर के भी हालात बहुत अच्छे हैं और सभी को खुशी भी बहुत है। बस अब तो मोदी जी अपने मन की जो बात कहें, वो कभी किसी के सामने झूठ बोल कर अपने मन की बात ना बतावें। वो मोदी जी भी खुद जानते हैं कि मेरे मन की बात क्या है और किसानों के मन की बात क्या है। बस मोदी जी थोड़ा सा मतलब वो कर लें, अपना जो उन्हें करना वो पीछे हटा लें और अपना इन पर किसानों पर ध्यान दे लें। उन किसानों से ही उन्हीं की जीत है। हाँ जी, किसानों की समस्या को समझ लें मोदी जी, किसानों की समस्या को समझ लें, इतना नहीं समझने के, इतना मोदी जी का कुछ रहा नहीं बैठने का ना उनके ठीक मन है। की बात कहने से कोई फायदा है? मन की बात तो वे झूठू झूठू बोलते हैं, मन की बात, मन की बात, मन की बात कहाँ कर रहे, कह रहे कि इतने लाख इतनी नौकरी देंगे, किसे देंगे नौकरी? नौकरी तो जब उन्होंने ट्रेन ही, वो तो उन्होंने बोल दिया, अमित शाह जी ने जुमला था, उन्होंने तो ट्रेन ही रिमोट कंट्रोल कर दी, रिमोट से चला दी, एक आध को तो नौकरी मिल जाती, वे देंगे कहाँ नौकरी? जहाँ किसान नौकरी के काम है, जहाँ बच्चे अपना कुछ कर लें, कुछ भविष्य बना लें, उन्हें तो मोदी जी ने रिमोट से चलवा दिया। वे क्या किसे देंगे नौकरी? नौकरी तो जिनकी लग रही थी वही खोस ली, जो सरकारी थी वे सब प्राइवेट कर दी सरकार ने, कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने तो लाल किले तक नहीं छोड़ा, वो प्राइवेट वालों को बेच रखा, किराए पे दे रखा, कुछ ही को वालो उसमें बेच रखा, कह दो चाहे किराए पे कह दो, कैसे भी कर लो। मोदी जी मन की बात मान रहे, मोदी ने तो महंगाई को देख लो, कहाँ जाकर रुकेगी महंगाई? अगर उसका परिवार होता ना, 850 का हो रहा, नहीं 850 का हो रहा, यू देश दो थोड़ा ही है भैया, एक ही है ही, तो भारत तो एक ही है, जहाँ वो बढ़ाएंगे वहीं कमाई बढ़ेगा। आप तो करोड़पति हो, तो आप चूल्हा क्यों जलाते हो? सिलेंडर जलाओ ना, आपकी रसोई में मैंने पुराने चूल्हे देखे हैं। तो चूल्हा तो देख ला भैया, अंगीठी भी बना रखी, सब सामान बना रखे। वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ, कि आप तो चूल्हा जलाते हो, तो अमीरी आई नहीं है, वो तो आ रही है मेरी अमीरी, तो मेरे मन में आ रही, जो भी आ रही। हाँ, मोदी जी कहाँ बांध रहे इन बातों को? थोड़ा सा ना वो जो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया ना मोदी से, आप एक बार ये पूछो, तिरंगे पे ऑटोग्राफ की बात कर रहे थे दिया ना, तो उनसे ये पूछो कि अब से पहले किसी देश में किसी ने अपने देश के झंडे का ऑटोग्राफ सबसे पहले किसने दिया? एक बार उनसे बस ये सवाल जरूर पूछो कि किसी भी देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने झंडे का ऑटोग्राफ सबसे पहले किसे दिया? और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने देश के झंडे का ऑटोग्राफ दिया। वो किस कारण दिया? इसका मतलब पीछे क्या मकसद है जो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया? ਪੁਸ਼ਤਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ, ਬਲਜੋਰੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰ ਔਰ ਸਸੂ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਚੋਹਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ पड़पड़ बाबा हो गए। ये पिताजी के मतलब जो हमारे हाँ। थे, उनके पिताजी हो गए जी, उनके चाचा हो गए, और उनसे फैमिली मतलब फिर शुरुआत हो गई जी, बताते हाँ रहिए। जी, ये मतलब महेंद्र सिंह टिकैत हैं, उनके 4 बेटे हो गए जी, 3 बेटियां होगी जी, एक बहन है महेंद्री देवी जी, है ना जी।
और ये राकेश का परिवार हो गया, सबके नाम है। ये नरेंद्र जी का परिवार हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1 2 3, हाँ जी, ठीक है ये जी। हो गया नरेश जी का परिवार। ਇਹ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੋ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਰਘੂ ਤੇ ਵੰਸ਼। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਅਨੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਅਨੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਟਕੈਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰਿਤੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਮਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਵ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ? ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100-200 ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਜਾ। ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਜਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਐਲਬਮ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਬਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਰਮੂ ਖੇੜੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 27 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣੇ ਦੇ ਜਾਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨ ਲਸਾੜ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਭਾਲਕਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਠ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਟਕੈਤ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਪਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15/7/1990 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਰੇਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 31/12/1991 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਠ ਪੈਂਦਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। 22/6/1992 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
31/7 ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨਗਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 23 ਨੂੰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਮਕੋਲਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗਣੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਰਾਮਕੋਲਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਚੌਧਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਜੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਤੇ 15 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ बिल्कुल। और क्या यादें संजो के रखी आप? जोत है जी, दिया जलता रहे। अच्छा, जो महाराज सूरजमान मल जी की भी तस्वीर लगाई हुई है, थोड़ा इसके बारे में। हाँ जी, महाराजा सूरजमल की लग रही है। अच्छा, इनको मानते थे? हाँ जी। अच्छा, इनकी वो करते थे? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बताते रहिए कोई नहीं, बोल आप बोलिए। सो राजनाथ सिंह जी द्वारा दिखाई दे रहे हैं किसी होर फंक्शन 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਪਗੜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜੇ ਵੀ ਘਾਲਮੇਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। नहीं, मन क्यों पीछे होगा? मैं हो है? मन पीछे नहीं होने का भाई। मत्थे पे शिकन थी क्यों? नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है, कंधे तक कंधा मिला के चल रहे। ठीक है, हाँ, चलो धन्यवाद। लास्ट आप कुछ कह रहे थे उस वक्त, बीच में बात रही थी। सोनू टिकैत जी बिल्कुल। हाँ जी, देखो सरकार के दांत खट्टे तो किसानों ने कर दिए, ये दांत निकल के भी रहेंगे, निकलेंगे भी जरूर। और बस यही है, अपना संघर्ष कर रहे किसान। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ जीत भी होती है। और बिल तो सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और लेने भी चाहिए। अगर सरकार को ये है कि तुम्हें कहीं पे थोड़ी सी भी इंसानियत बच रही है ना, अगर बड़ों के पास उनके जो कुछ भी वे माई बाप है इनके बीजेपी वालों के, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बच रही है ना, तो तुम्हें देश के लिए ये बिल तो वापस लेने ही पड़ेंगे। और एमएसपी पे गारंटीड कानून भी बनाना पड़ेगा। हाँ जी, इस संघर्ष को करते करते 35 साल हो गए। ठीक है, अब सब कुछ पता है। सरकार को चोई साहब ने हिला कर रख दिया था, लाइन लगा रही थी उनसे मिलने के नीचे लिए। इतिहास है वो देख के यही लगता है कि आज दा नहीं है, पुश्तैनी। हाँ जी, पुश्तैनी है। इसे ना कोई डरता और ना ही किसी को घबराहट होती, कुछ नहीं होता। आपको गर्व तो होता होगा इस घर की बहुएं बनने का? बहुत ज्यादा गर्व होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लोगों अपना के लिए जीते हैं। ये टिकैत परिवार तो दूसरों के लिए जी रहा है, किसानों के लिए जी रहा है खासकर। हाँ जी, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਪੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ यूपी उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर पिंड ससौली चौधरी महेंद्र सिंह टकैत के घर तो गौरव राणा की विशेष रिपोर्ट।